جی اس وقت ہم ضلع خانیوال میں موجود ہیں اور پورے پاکستان کی طرح خانیوال میں بھی جشن آزادی کی خوشی میں جگہ جگہ پر جھنڈے بیچے جا رہے ہیں، لوگ ملی ترانے یاد کر رہے ہیں، اور لیکن دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہماری نئی نوجوان نسل کو کیا میں پاکستان کے مقاصد اور مشکلات کے حوالے سے علم ہے؟ یقیناً انہوں نے بہت ساری ڈاکومنٹریز میں یہ ساری انفارمیشن دیکھی تو ہوگی، لیکن آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، نذر محمد صاحب، جو 1933 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پاکستان بنتے دیکھا۔ 1933 سے 1947 کی اگر ہم عمر کا اندازہ لگائیں تو پاکستان بنتے وقت ان کی عمر 15-16 سال تھی، اور یہ وہ عمر ہے جس میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کے اثرات اس کی زندگی پر قائم رہتے ہیں۔ تو اب ہم نذر محمد صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی آپ بتائیں گے جی آپ کی عمر اس وقت کیا ہے، اور جب پاکستان بنا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جب پاکستان بنا تھا نا جی، میری عمر 13-14 سال تھی، اب میری 9 سال جا رہا ہوں جی۔ 1933 کی میری پیدائش ہے، اور پاکستان جب بنا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت 5ویں-6ویں جماعت ہم پڑھتے تھے جی۔ اچھا، 5ویں-6ٹھی جماعت میں آپ اس وقت پڑھتے تھے، تو اس وقت آپ مجھے اپنے اسکول کے حوالے سے، اپنے بچپن کے حوالے سے کوئی یادداشت بتائیں۔ یادداشت اس وقت ہے جی کہ اس وقت ماسٹر ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، یہ ہمارے ماسٹر بھی تھے، ہمارے ساتھ وہ لڑکے پڑھتے بھی تھے جی۔ اور سب مل کر پڑھ رہے تھے، سب مل کر کھیلتے تھے مل کر، بڑا سلوک تھا، اخلاق۔ اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی الگ سے ملک پاکستان بن رہا ہے؟ کہاں سے آپ نے سنا؟ آپ کو کیسے علم ہوا؟ ہمارا ایک ہیڈ ماسٹر تھا جی، اس کا نام کرم الہی تھا، کمبو تھا کری والے خانیوال کا۔ وہ بتاتا تھا کہ اخبار میں آتا ہے کہ پاکستان بنے گا اور ملک علیحدہ اور انگریز چلے جائیں گے، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا تھا جی۔ وہ ایک پیریڈ دیتے تھے لوگوں کو، بچوں کو۔ اچھا، پھر جب آپ کو یہ معلومات ملی تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ آپ نے اس وقت قائد اعظم کی کوئی تقریر سنی، یا قائد اعظم کے بارے میں آپ کو کیسے علم ہوا، یا ان کے ساتھیوں کے حوالے سے آپ کو کوئی علم ہے؟ وہ ایک جملہ آتا تھا جی، اس کا پاکستان بنا نہیں تھا ابھی، تو وہ ہیڈ ماسٹر کی وجہ سے آتے تھے، وہ تقریر کرتے تھے، بھائی پاکستان بنے گا، انگریز چلے جائیں گے، ہندو علیحدہ ہو جائیں گے، مسلمان علیحدہ ہو جائیں گے، اس طرح وہ تقریریں کرتے تھے۔ تقریریں شروع ہو گئی تو جناب وہ انگریز جو تھا وہ 100 سال کا مسلط تھا اس ہندوستان پر۔ تو ہندوستان والے ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمانوں نے سوچا کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ انگلینڈ سے آیا ہے، اس کا کیا نتیجہ یہاں نکلے گا، اس کو نکالو، ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں۔ تو جب انہوں قرارداد پاس ہو گئی، سن 40 میں ہوئی یہ قرارداد ان بڑے لوگوں کی، اس میں علامہ اقبال، محمد علی جناح، مس فاطمہ جناح اور عبدالرب نشتر یہ تھے۔ ہندوؤں میں سے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو تھے، یہ ہندو بھی اپنے ساتھ تھے۔ تو جب وہ ووٹ پڑے تو ووٹوں کے ذریعے سے وہ انگریز کی پارٹی کا نام یونس پارٹی تھا، کانگریس، اور مسلمان جو تھے ان کی پارٹی کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ ہر ضلع میں جیسے کہ ووٹ پڑتے ہیں، بڑی دیگیں چڑھی، بڑی خوشیاں ہوئیں، ووٹ پڑے۔ وہ پہلی دفعہ ہمارا واقعہ ہے ووٹوں کے پڑھنے کا۔ تو اس وقت ووٹ پڑے تو جناب یہ کانگریس ہار گئی، کانگریس ہارنے سے یہ جیت گئے مسلمان، اور پھر پارٹیشن ہو گئی جی ہندو اور مسلمان کی، علیحدہ علیحدہ کرنے کی۔ اس وقت گورنر تھا جی، اس نے بٹائی تو اچھی نہیں کی، پاکستان کو کم رقبہ دیا اور ان کو ڈھیر زیادہ دے دیا۔ تو اس طرح وہ پارٹیشن کر کے
चले गए। फिर वो हिजरत हुई इनकी आने जाने की, तो जैसा कि रिसालत मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी हिजरत हुई थी, मगर वो उस वक्त अदल बदल इधर उधर नहीं हुआ था, एक तरफ के गए थे। ये दोनों तरफ के गए, उधर इधर आए, इधर वाले उधर। वैसे आर्डर था कि अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, मगर कुछ लोग चले गए। मेरी याददाश्त है, हम शहर में फिर रहे थे स्कूल के बाद, हमें स्कूल से निकाल दिया गया, बाहर गिरांडू में बिठा दिया, क्योंकि वहाँ महाजर लोग आकर आबाद हो गए थे। तो उन्होंने वहाँ का आबादी शुरू कर दी। फिर 3, 4, 5 मरगे रोज़ होती थी, बीमारी पड़ गई और खुराक की कमी हो गई। इस तरह हमारे आंखों के सामने जनाब मंजर हमने देखा। फिर लोग यहाँ के वहाँ जाते, इधर के इधर जाते, गाड़ी चलने लगी। फिर एक डोगरा मिलिट्री होती थी, वो आई और हिंदुओं को निकाल कर ले गई। वो उधर चले गए मुसलमान। कत्लो गारत बड़ी हुई जी, इसमें बड़ा सदमा हुआ, बड़ी बातें हुई। तो वो पाकिस्तान बड़े मुश्किल से वजूद में आया और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में हम मौजूद हैं, यहाँ देखते हैं। मगर वो अंग्रेज़ था, इसकी वो शिकायत या मतलब रानजोई नहीं करता मैं, ये कहता था कि अंग्रेज़ का कानून बड़ा अच्छा था। उस वक्त जो लोग थे महफूज थे, अब जो लोग हैं महफूज नहीं हैं। जी, आपसे हमें बहुत सारी मालूमात मिली और यकीनन आपको वो बहुत सारी बातें याद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने कोई सरकारी नौकरी भी की है? आप हमें उस हवाले से बताएं कि उस दौर में आपको कैसे नौकरी मिल गई? वो जी सन 1950 में मैंने मिडल की थी। फिर मैं बीमार हो गया। हेडमास्टर ने मेरे वालिद साहब को कहा कि 1 साल इसे रेस्ट कराओ, वरना इसका दिमाग सही नहीं रहेगा। फिर मैं 1 साल रेस्ट करी। रेस्ट करने के बाद वो किस्मत में भी ऐसा था, फिर मैं 5-6 साल काश्तकारी करी। उसके बाद जनाब वो कमेटी बल्दियात में जगह निकली। चुंगी मोहर चुंगियाँ होती थीं उस वक्त, जी हाँ, चुंगी मोहर की। वो चुंगी 8 जमात वाले को स्कूल में 4 जमातों वालों में ले लेते थे, पटवारी लेते थे, सिपाही भी लेते थे। और उस दौरान में मैंने दरख्वास्त दी और सन 60 में मैं वहाँ तैनात हो गया। 25 साल सर्विस करी, बड़ी अच्छी एक्टा क्लर्क के हिसाब से। और फिर मैं सन 84 में रिटायर होकर वापस घर आ गया। अब मैं घर रहता हूँ जी। मेरे तनख्वाह के हवाले से भी हाँ, बताएं, उस वक्त आपको कितनी तनख्वाह? उस वक्त जब मैं लगा था जी, उस वक्त तनख्वाह 60 रुपया माहवार थी। और 60 रुपए में गुजारा हो जाता था? रुपए में उस वक्त 7 रुपये मन कनक थी, 5 रुपये मन चने थे, और गुड़ शक्कर घ्यो बहुत 4 रुपये किलो घ्यो होता था। तो शेर होते थे उस वक्त। वो अच्छा गुजारा होता था, क्योंकि इंसानों के ईमान मुकम्मल थे कि थोड़ा भी आता तो शुक्र करते। अब शुक्र नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। जैसा कि कहते हैं कि जैसी अवाम वैसा बादशाह भी ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं। वैसे उस जैसा आराम हमें अब नहीं है। और अब तो महंगाई बहुत ऊपर चढ़ गई है, गरीब आदमी का 2 बार रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। अब क्या करें, किसे फरियाद करें, सुनता ही कोई नहीं। बादशाही जो है ये आपस में लड़ पड़े हैं, कोई इधर है कोई इधर है। जी, महफूज रखे पाकिस्तान को। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आपकी माशाल्लाह याददाश्त बहुत बेहतर है और मैं समझती हूँ कि आपने अपने आप को बड़ा इस हवाले से फ़िट रखा हुआ है। चूँकि आप ज़िम्मेदारी से भी मुंसलिक थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि खानेवाल वो ज़िला है जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो क्या मैं पाकिस्तान के बाद यहाँ पे क्रिश्चियन आए या क्या मैं पाकिस्तान से पहले आए, और उनके साथ हमारा या उन लोगों का हमारे साथ रवैया किस तरह रहा? और आप यहाँ पर आपके करीबी शांति नगर का चक है, अब आप लोगों का रहन सहन किस तरह से है? क्रिश्चियन लोग जी हमारे यहाँ थोड़े 3-4 मील के फासले पर शांति नगर है, वो सारे क्रिश्चियन का है। इधर एक 35 चक है, वो भी क्रिश्चियन रहते हैं। और यहाँ लांड्री है, यहाँ भी बड़ी काफ़ी लोग रहते हैं। हमारे साथ अच्छा सलूक है, अगर हमारे त्यौहार में शुमार होते हैं वो आ जाते हैं। हमारे साथ लेन देन चलता है उनका, वो अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि
परचम में रंगत है ना कि अकलियत की, इस तरह वो अपनी अकलियत में, और बादशाह भी हमारे मलकियत गवर्नमेंट भी उनका ख्याल रखती है, अच्छे सलूक से हमारे बोलते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और मैं समझती हूँ क्या आप ये मालूमात, जो आपके पास इतनी मालूमात है, और आप इस गांव में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं और लोग आपके पास आते होंगे, नौजवान आते होंगे, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते होंगे कि हमने ये जो पाकिस्तान इतनी मुश्किलों से तकलीफ़ों से हासिल किया, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब में तो जनाब उनको सबसे पहले तो मोहब्बत करनी चाहिए, इखलाक करना चाहिए, लेन देन अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। मैं हमेशा कोई मर्ग हो जाए तो वहाँ फातह खानी पर जाता हूँ, लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि मियाँ से कोई बात पूछें, पुरानी बातें जैसे आप पूछ रहे हैं, इस तरह काफ़ी बातें मैं उनको बताता हूँ। और मैं इंशाअल्लाह दीनियात में भी काफ़ी मालूमात रखता हूँ, दीनियात के मसले भी उनको बताता हूँ, वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं। जी, तो आज हम इन बुज़ुर्गों से मिले और इन्होंने बताया कि क़याम पाकिस्तान के वक्त किस तरह मुश्किलात थीं और किस तरह से मसाइल थे, और ये पाकिस्तान इतनी आसानी से हासिल नहीं किया गया। यूँ समझें कि पाकिस्तान के क़याम में हमारे इंसानों का खून पानी की जगह, गोश्त गारे की जगह और हड्डियाँ ईंटों की जगह इस्तेमाल हुई, और फिर हमें एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का मौका मिला। आज हम जब इस पाकिस्तानी परचम को देखते हैं तो हमारे चेहरे खुशी से मुस्करा उठते हैं, हमारे दिल को एक सुकून मिलता है और हमें इस परचम से मोहब्बत है। मैं जब इन बुज़ुर्गों से मिली तो इन्होंने मुझे बताया कि आज भी 14 अगस्त पर मैं अपने घर में झंडा लगाता हूँ, एहतमाम करता हूँ, बच्चों को आज़ादी की कीमत जो हम सब ने अदा की उस हवाले से आगाही देता हूँ। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपसे हमें बहुत मालूमात मिली और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी राब्ता रहेगा।